السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے، سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی، ذکر و فکر میں مشغول رہے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کا انکشاف ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے، جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ
امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چاچا زاد بھائی تھے اور زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ بن نوفل اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے، یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کے قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین اور مقبول ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ریاستی گورنر جشنو دیو ورما سے سی ایم ریونت ریڈی نے کی ملاقات۔ سال 9 کے موقع پر شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئے سی ایم نے دی مبارکباد۔ سال 9 کے موقع پر تلنگانہ میں شراب کی بکری میں ہوا اضافہ۔ صرف 3 دنوں میں 1000 کروڑ مالیت پر مبنی شراب کی فروخت ہونے کا حکام نے کیا اظہار۔ ذہنی تناؤ کے سبب ایک نوجوان نے کر لی خودکشی۔ شہر کے ہاشمی کالونی میں پیش آیا افسوسناک واقعہ۔ ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے بحیثیت نائب صدر آفیسر کلب کے عہدے کا لیا جائزہ۔ نئے سال کی رات محکمہ پولیس کی جانب سے 130 افراد کو حالت نشے میں گاڑی چلانے پر درج کیے گئے مقدمات۔ سی پی سعید چیتنیہ۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے بحیثیت نائب صدر آفیسر کلب کے عہدے کا لیا جائزہ۔ آج ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے شہر نظام آباد کے مشہور و معروف آفیسر کلب اولڈ کلکٹریٹ کے نائب صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ اس تقریب میں شہر کے نظام آباد کے کئی اہم عہدیداروں نے شرکت کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے تمام ممبران سے ان کی جانب سے کیے گئے بھروسے پر اظہار تشکر پیش کیا اور آفیسر کلب کی ترقی کے لیے خدمات انجام دینے کا عہد کیا۔ ذہنی تناؤ کے سبب ایک نوجوان نے کر لی خودکشی۔ شہر کے ہاشمی کالونی میں پیش آیا افسوسناک واقعہ۔ شہر نظام آباد کے علاقہ ہاشمی کالونی کے رہنے والے 35 سالہ نوجوان شیخ شبیر نے
अपने मकान में खुदकुशी कर ली, जिसकी इत्तला उस वक्त हुई जब सुबह के औकात इनके वालिदा घर पर पहुंची, जिसके बाद अफराद खानदान ने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ते हुए तस्दीक की और महकमे पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद महकमे पुलिस ने तहकीकात का आगाज करते हुए मरहूम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन जिला सदर शकील फाजिल, मजलिस कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, साबिका मुआविन कॉर्पोरेटर मुअतमद आला मोहम्मद शहबाज, मजलिस कायद खलील अरशद पाशा, अली बागबान व दीगर ने हॉस्पिटल व मकान पर पहुंचते हुए कानूनी कार्रवाई में मरहूम के अफराद खानदान की मदद की। आज सुबह के अवलीन सातों में एक शेख शब्बीर नामी शख्स जो 30 से 35 साल के दरमियान हाशमी कॉलोनी में हमारे शिशिया मस्जिद के करीब रहता था, वो एक ऐसी इत्तला मिली कि वो फांसी ले लिया। जैसे ही इत्तला मिली हमारे एमआईएम के ज़िम्मेदार वहाँ पर पहुँचकर उनके अहले खाना को पुरसा दिया और साथ ही साथ बात की कार्रवाई के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया गया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ उनके साथ मरहूम के साथ उनकी वालदा रहती है और कुछ बहनें वगैरह। बहरहाल ये सब देखते हुए एमआईएम पार्टी ये डिमांड करती है और कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी भी करेंगी कि इस मरहूम के उसके वालदा को, क्योंकि नौजवान बच्चा था, गवर्नमेंट के तरफ से हुकूमती सतह पे जो भी आफात बंदू के तौर पे या किसी और तौर पे हम उनको एक रकम दिलाएंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम अहले खाना के साथ उनके गम में शामिल हैं और ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बहरहाल हो गई। हम फिर से एक बार जल्द से जल्द कलेक्टर साहब से जाके नुमाइंदगी करते हुए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मराहत मिलती है उसको हम जल्द से जल्द दिलाएंगे। ये चीज़ें तमाम ही जैसा कि सीआई साहब और एसआई साहब, एसीपी साहब से भी हमने इस चीज़ को सामने रखा। इंशाल्लाह देखते हैं कैसा, और जितना जल्दी हो सकते हैं तदफीन का भी इंतज़ाम हमारे एमआईएम पार्टी के ज़िम्मेदार कॉर्पोरेटर्स वगैरह जो ख़ानदान वालों के साथ रहते हुए उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद विरसा को उनकी बॉडी हवाले कर दी। बोधन शहर के चर्च में सालों के मौके पर क्रिश्चियन बहन भाइयों ने खुसूसी इबादत का किया इनेकाद। बोधन शहर में वाक़े चर्च में पास्टर अनंतया चौधरी के ज़ेर एहतमाम खुसूसी इबादत का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कसीर तादाद में क्रिश्चियन बहन भाइयों ने शिरकत करते हुए अकीदत व एहतराम के साथ इबादत का इनेकाद अमल में लाते हुए सालों बालिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की जिंदगी में खुशहाली लाने की ख्वाहिश की। యేసు ఎక్కడ ఉన్నాడు? జస్ట్ వి హర్డ్ ద సాంగ్. మనం ఇప్పుడే అది పాట విన్నాం కదా. డు యు నో? తెలుసా? ఎక్కడ? शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ रवि पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को ट्रैफिक कवायद के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ रवि पब्लिक स्कूल में तेलंगाना स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को ट्रैफिक कवायद के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक कवायद पर अमल आवारी करते हुए हर एक मोटरसाइकिल मालिकीन यकीनी तौर पर सर पर हेलमेट लगाना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र बच्चे ड्राइविंग हरगिज नहीं करे और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक कवायद पर हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अमल आवारी करते हुए महकमे पुलिस के साथ ताउन करने का इजहार किया। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जय कुमार ने शिरकत की, जो कि स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक कवानीन के ताल्लुक से आगाही फराहम की। इस प्रोग्राम में स्कूल के इंतजामिया और असातिज़ा साहिबीन के अलावा तुलबा और ज़िला ट्रांसपोर्ट महकमे के अफसरान ने शिरकत की। మాసోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. దాని సందర్భంగా ఇవాళ రవి స్కూల్ రావడం జరిగింది. పిల్లలకి ఓత్ చేయించాము.
తర్వాత వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేసాము. దానివల్ల మనకి తెలంగాణలో రోజుకి 20 మంది చనిపోతున్నారు. సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేసేందుకు ఈ మాసోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. సో దానిలో ఎడ్యుకేట్ చేసి పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసేసి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెంచుదామని మేము ఇక వచ్చి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ట్రాన్స్పోర్ట్ వారోత్సవాల్లో భాగంగా వారు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండేది ఇప్పుడు పైకి వచ్చే పిల్లల్ని అవేర్నెస్ తీసుకొస్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వాళ్ళు అంటే పేరెంట్స్ని కూడా వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసే విధంగా మనం అవేర్నెస్ తీసుకురావచ్చు అనే ఒక ఆలోచనతోటి మన రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ విభాగం వాళ్ళు नए साल की रात महकमे पुलिस की जानिब से 130 अफराद को हालत नशे में गाड़ी चलाने पर दर्ज किए गए मुकदमात। सीपी साई चैतन्य। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने 31 दिसंबर की रात सालनौ तकारीब के मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव का इनेकाद अमल में लाते हुए निजामाबाद आरमूर बोधन डिवीजन में निजामाबाद ट्रैफिक सेक्शन के तहत तनकी अमल में लाते हुए तकरीबन 130 मोटरसाइकिल मालिकिन को शराब नौशी की हालत में तहवील में लेने का इजहार किया। सीपी ने कहा कि अवाम की हिफाजत के लिए ही इस तनकी का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। शहर के सुभाष नगर में वाक़े बहुजना लेफ्ट पार्टी दफ्तर में भीमा कोरे गांव शोहदा की यादगार जलसे आम का किया गया इनेकाद। जिला निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े बहुजना लेफ्ट पार्टी जिला दफ्तर में मुनाकिदा भीमा कोरे गांव शोहदा यादगार जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर दंडी वेंकट ने कहा कि 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के पुणे जिला से 30 किलोमीटर के फासले पर दरियाए भीमा को किनारे पर वाक़े कोरे गांव देहात में 500 महार सिपाहियों को 28,000 अफराद पेशवा बाजीराव ने हमलेवार सिपाहियों के दरमियान होने वाली जंग में 28,000 पेशवा सिपाहियों को सिर्फ 500 महार मेहनत कश तबके के अफराद ने करारी शिकस्त देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बहुजना लेफ्ट जिला सदर सब्बानी लता, जिला जनरल सेक्रेटरी वाई अनिल कुमार, BLTU जिला सेक्रेटरी M राजेंद्र, ड्राइवर्स यूनियन कायदीन अब्दुल्ला, BDSF जिला सदर T संजय, जिला सेक्रेटरी बाबू, जिले के कायदीन D पोशेट्टी, T बाबू व दीगर ने शिरकत की। మరి ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నారు। ఇవాళ 1818 జనవరి 1న ఇవాళ మహారాష్ట్ర మరి పుణే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భీమా నది ఒడ్డున ఒక అగ్రకుల ఆధిపత్యాలకు సంబంధించిన పీస్వా బ్రాహ్మణులకు సంబంధించిన 28,000 సైన్యానికి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మహారు అంటే బహుజన జాతులకు సంబంధించినటువంటి 500 మంది సైన్యం మధ్యలో జరిగినటువంటి యుద్ధంలో 28,000 మంది మరి ఆధిపత్య కులాలకు సంబంధించిన సైన్యాన్ని తుదముట్టించి మరి అందులో ఒక 47 మంది వీరమరణం। निजामाबाद में नेशनल रोड सेफ्टी तकारीब का आगाज हुआ। निजामाबाद में नेशनल रोड सेफ्टी तकारीब का आगाज अमल में लाया गया। इस हिस्से के तहत निजामाबाद 1, निजामाबाद 2, बोधन, बांसवाड़ा, कामारेड्डी, आरमूर डिपो में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम नेशनल रोड सेफ्टी तकारीब 2026 का प्रोग्राम निजामाबाद रीजन में शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया। इस तकारीब को 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक इनेकाद अमल में लाने का हुक्काम की जानिब से बताया गया है। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए जलसे आम में ओहदेदारान मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि निजामाबाद 1 डिपो ACP मस्तान अली, ट्रैफिक CI प्रसाद, निजामाबाद 2 डिपो DTC दुर्गा प्रमीला, DTO उमा महेश्वर राव, बोधन CI वेंकट रामाना, बांसवाड़ा SI सुभाष, कामारेड्डी ACP चैतन्य और आरमूर MYI राहुल। इस प्रोग्राम में निजामाबाद 1 डिपो, निजामाबाद 2 डिपो और बोधन, बांसवाड़ा, कामारेड्डी, आरमूर डिपो में शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवायद पर अमल आवारी करते हुए सड़क हादसे से नजात हासिल करने के नारे के साथ ड्राइवरों और अमले अवाम में रोड सेफ्टी के बारे में शऊर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। ముఖ్యంగా మీకు మీ పిల్లలకు చెప్పవలసిన సూచన ఏంటంటే మైండ్ డ్రైవింగ్ మీకు కొడుకులు బిడ్డలు అందరూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు పిల్లలకు ఎట్లా మైనర్ చాలా మటుకు మీరు డ్రైవ్ చేస్తుండవచ్చు, మీరు కూడా ఇస్తారు। మైనర్ డ్రైవింగ్ చేస్తే అంటే మీ పిల్లలు ఎవరైనా కానీ చేస్తే
మైనర్ డ్రైవింగ్ చేస్తే ఏమవుతుందో సార్, ఒక 3 సంవత్సరాల వరకు మీకు ఎవరైతే వెహికల్ ఇచ్చారో ఓనర్స్ కానీ గార్డియన్స్ కానీ వాళ్ళకు ఒక 3 సంవత్సరాలు శిక్ష ఉంటుంది. అంటే మైనర్ డ్రైవింగ్ చేసి ఏదైనా జరిగిన పట్టుబడిన, అర్థమైందా? మళ్ళా అతను 25,000 వరకు పెనాల్టీ కూడా ఉంటుంది. 25,000 వరకు పెనాల్టీ ప్లస్ అతనికి 25 సంవత్సరాలు నిండిన వరకు లైసెన్స్ ఇవ్వబడదు. 25 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత లైసెన్స్ ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా 18 సంవత్సరాలు నిండితే లైసెన్స్ వస్తుంది కదా, కానీ మైనర్గా డ్రైవ్ చేసి పట్టుబడితే 18 సంవత్సరాల నుంచి 25 సంవత్సరాలకు లైసెన్స్ ఇవ్వబడదు. 25 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత లైసెన్స్ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. అది ఒకటి చాలా పెద్ద తప్పదు. మళ్ళీ వెహికల్, దాని యొక్క వెహికల్ ఆర్సీ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. వెహికల్ ఆర్సీ 1 year క్యాన్సిల్ అయిందంటే అది వెహికల్ ఇన్వాలిడ్, రోడ్డు మీద తీయడానికి లేదు, ఇంట్లో పెట్టుకోవాల్సింది. साल 9 के मौके पर तेलंगाना में शराब की बिक्री में हुआ इजाफा। साल 9 के मौके पर रियासत तेलंगाना में शराब की फरोख्त में भारी इजाफा हुआ। सिर्फ 3 दिनों में ही तकरीबन 1000 करोड़ मालियत पर मबनी शराब को फरोख्त करने का हुक्काम की जानिब से बताया गया है। वो गुज़िश्ता 6 दिनों में रियासत में 1350 करोड़ की शराब फरोख्त हुई है और इसके अलावा 3 दिनों में 8.30 लाख लिकर और 7.78 लाख बेर को फरोख्त करने का इजहार किया। शहर के मारवती नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी माजूरीन स्कूल में साल 9 तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के मारवती नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के माजूरीन स्कूल में साल 9 तकारीब के मौके पर केक कट करते हुए शानदार पैमाने पर इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में जिला आई कैंपस चेयरमैन एस श्रीनिवास राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि स्नेहा सोसाइटी माजूरीन स्कूल में लायंस क्लब ऑफ बोधन अयप्पा सेवा कई सालों से खिदमत अंजाम दे रही है और आने वाले दिनों में भी स्नेहा सोसाइटी की जानिब से शुरू करने वाले प्रोग्रामों को हमारी तरफ से हर मुमकिन तौर पर ताउन देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि लायंस क्लब ऑफ बोधन अयप्पा की जानिब से फलाही खिदमत शुरू करते हुए गुरबा और बुजुर्गों की खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी एग्जीक्यूटिव मेंबर टी वर्षम, स्कूल प्रिंसिपल एस ज्योति, लायंस क्लब ऑफ बोधन अयप्पा सेवा सेक्रेटरी के पोशट्टी के अलावा दीगर ने शिरकत की। 15 ఆగస్టు వేడుకలు పెరేడ్ గ్రౌండ్లో డ్యాన్స్ చేయడం అనేది మనకు ఒక అచీవ్మెంట్. అదేవిధంగా మరి 2 సంవత్సరాలు అంటే 2023లో 2025లో మన దగ్గర నుంచి ఒక 20 మంది పిల్లలు జాతీయ స్థాయి యోగా కూడా సెలెక్ట్ అయ్యి మరి యోగాలో కూడా మంచి ప్రతిభ చూపించినారు. సో ఈ సంవత్సరం కూడా మనం కొన్ని రిజల్యూషన్స్ పాస్ చేసుకోవాలి. సో యోగాలో మరి అడుగుతున్నారు, మన జిల్లా యంత్రాంగం నుంచి ఏమడుగుతున్నారు అంటే 26 జనవరి రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఒక 75 మంది విద్యార్థులు పెరేడ్ గ్రౌండ్లో యోగా చేస్తే బాగుంటుంది అని అడుగుతున్నారు. దానికి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ కూడా మనం చేస్తున్నాం. వీళ్ళకి ఆల్రెడీ ఓరియంటేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా యోగాలో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के लोक भवन में रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से की मुलाकात। साल 9 के मौके पर रियासती गवर्नर को सीएम रेवंत रेड्डी ने नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर गवर्नर की शालपोशी गुलपोशी करते हुए मेमोंटो हवाले किया। बाद रियासत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर दोनों ने कुछ रफ्त तक तबादला ख्याल किया और इसके अलावा रियासत के अवाम को भी रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी की जानिब से साल 9 की मुबारकबादी दी गई। साल 9 हर एक की जिंदगी में नई उम्मीद, कामयाबी और खुशियां लाने की ख्वाहिश की और साल 2026 तेलंगाना की तरक्की में हैरत अंगेज संग मेल उबूर करने का इजहार किया। सीएम ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसान, नौजवानों और खवातीन व मजदूरों की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह देने का इजहार किया। पुलिस कमिश्नर पी सई चैतन्या से निजामाबाद ऑफिसर्स क्लब के एग्जीक्यूटिव अरकान ने की मुलाकात। साल 9 के मौके पर निजामाबाद सीपी सई चैतन्या से निजामाबाद ऑफिसर्स क्लब के नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव अरकान ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। इस प्रोग्राम में नायब सदर ताहे, जनरल सेक्रेटरी जलगम तिरुपति राव, श्याम सुंदर दास, अंति रेड्डी, राजा रेड्डी व दयाकर के अलावा दीगर ने शिरकत की। साल 9 के मौके पर बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर से अर्बन के साबिका एमएलए गणेश गुप्ता ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद।
साल 9 के मौके पर बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर से निजामाबाद अर्बन के साबिका एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए साल 9 की मुबारकबादी दी। इस मौके पर इन्होंने साल 9 हर एक जिंदगी में खुशियां लाने की ख्वाहिश की। बालकोंडा ग्राम पंचायत दफ्तर में नव मुंतखब सरपंच व नायब सरपंच को मंडल एजुकेशन ऑफिसर व बालकोंडा हाई स्कूल सदर मुदर्रिस की जानिब से तहनीत अमल में लाई। बालकोंडा ग्राम पंचायत में नव मुंतखब सरपंच जी राजेश, नायब सरपंच जी राजेंद्र को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई, जो कि हालिया ग्राम पंचायत के इंतखाबात में फतेह हासिल करने वाले सरपंच जी राजेश को ग्राम पंचायत में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाने वाले प्रोग्राम में मंडल एजुकेशन ऑफिसर और स्कूल सदर मुदर्रिस बी राजेश्वर इंचार्ज एम प्रशांत कुमार की जानिब से तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने देहात की तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का इजहार किया। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर ने मुलाजिमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रियासती रईतु कमीशन डायरेक्टर जी गंगाधर से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त की हवाले। शहर के गिरिराज कॉलेज डिग्री कॉन्ट्रैक्टर लेक्चरर्स ने जिला के मुकाम पर रियासती रईतु कमीशन डायरेक्टर जी गंगाधर से इनके दफ्तर में मुलाकात करते मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक याददाश्त हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पीरियड के पॉलिसी की वजह से नुकसान हो रहा है, लिहाजा एमटीएस पॉलिसी को नाफिज करने की ख्वाहिश की, जिस पर जी गंगाधर ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। हैदराबाद में रेवेन्यू एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सीएम रेवंत रेड्डी से रियासती वजीर पी श्रीनिवास व हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी के हमरा सदर रामन्ना रेड्डी ने मुलाकात करते हुए साल 9 की दी मुबारकबाद। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी के क़यामगाह में रियासती मुशीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद रेवेन्यू एसोसिएशन सदर रामन्ना रेड्डी ने वफद के हमरा सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए साल 9 की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इसके अलावा रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने भी मुलाकात करते हुए साल 9 की मुबारकबाद पेश की। अख्तिताम से कबल नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से सीएम रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। साल 9 के मौके पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए सीएम ने दी मुबारकबाद। साल 9 के मौके पर तेलंगाना में शराब की बिक्री में हुआ इजाफा। सिर्फ 3 दिनों में 1000 करोड़ मालियत पर मबनी शराब की फरोख्त होने का हुक्काम ने किया इजहार। ज़हनी तनाव के सबब एक नौजवान ने कर ली खुदकुशी। शहर के हाशमी कॉलोनी में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदा ने बाहैसियत नायब सदर ऑफिसर क्लब के ओहदे का लिया जायजा। नए साल की रात महकमे पुलिस की जानिब से 130 अफराद को हालत नशे में गाड़ी चलाने पर दर्ज किए गए मुकदमा। सीपी सईद चैतन्य। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।